Welcome all. Up till now we had done few chapters and poems of English from Beehive. Here today we start with Moments. First lesson, The Lost Child. Very interesting, yet a bit of sorrowness added to this story. And the end of the story, each one will decide in your own way that what should be the end, happy or sad. That depends on you. So let's start the journey. What happens with this child in a fair? Now a child goes to a fair with his parents. He is happy and excited, wants the sweets and toys shown there, but his parents are not buying it for him. Then why does he refuse when someone else comes and tells him that चलो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूँ? तब क्यों बच्चा ना बोल रहा है? Let's see. As we read the story, as we move ahead, you will come to know what happens with the boy in the fair. So meanings are given below. So when you go through the video, this first time, second time, have a look at the meanings. It becomes easy for you. So it was a festival of spring. If somebody asks you how many seasons we have, naturally you will say summer, winter, rainy. But actually there are 6 seasons that you will see in geography part when we do that chapter. So summer, winter, rainy as for you. Fourth one is retreating monsoon. That is the monsoon when it goes back. Rainy season के खत्म होने का time somewhere in, say actually it is August, September, sometime ड्यूरिंग दिवाली या नवरात्रि एक बार एक बारिश 1-2 दिन के लिए आ जाती है. दैट सीजन इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून. 5th सीजन है ऑटम. दैट इज पानखर ऋतु. दैट इज समवेयर अक्टूबर नवंबर. एंड स्प्रिंग सीजन इज बिटवीन विंटर एंड समर. दैट इज मार्च, होली के टाइम. इस इन बिटवीन 15 डेज का ये सीजन रहता है, मैक्स टू मैक्स 20. और स्प्रिंग सीजन दैट इज न्यू फ्लावर्स आर ब्लूमिंग. सो ये फेस्टिवल थी स्प्रिंग. एंड फ्रॉम द विंट्री शेड्स, दैट इज ठंड के बाद ये जो सीजन है तब लोग अपने अपने घरों से बाहर आ रहे हैं तैयार होके खुशी में टू एन्जॉय द फेयर. सो फ्रॉम दिस विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, मतलब पतली गलियाँ, एंड एलेज, दैट इज ऑल्सो सेम, सम नैरो पाथ, इमर्ज्ड. तो इन पतली गलियों पे कौन आ गया? हु इमर्ज्ड? हैप्पीनेस वोन ह्यूमन बीइंग. मतलब खुशी सबके मुंह पे दिख रही थी. लोग ओवर हैप्पी थे. वाई? नेचुरली बिकॉज दे वर गोइंग टू एंजॉय द फेयर. सो ऑल दिस पीपल इमर्ज्ड out of that narrow path. Gaily, that is happy. Clad मतलब happiness, पहने हुए. Humanity, human being. Now some walked, some were on horses, somebody was sitting in a bamboo, that is being carried in bamboo मतलब डोली में. Some were moving in bullock carts, but in between them there was one little boy who ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Brimming over means over excited, over happy, right? So this child was very much happy. Now it so happened that his parents called him. Come child, come. Why they called him? Because every time the child used to get attracted by something or the other on the way, because they went walking towards the fair, and he used to stop at that thing by which he got attracted. लेकिन उसके पेरेंट्स तो आगे बढ़ रहे थे तो वो रुक के फिर अपने बच्चे को बुला रहे थे. नाउ दिस टाइम द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड, मीन्स अट्रैक्टेड स्ट्रांगली. किस चीज़ से अट्रैक्ट होके रुक चुका था रास्ते में? बाय दोज कलरफुल टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. लाइंड द वे मतलब जो रास्ते के साथ साथ शॉप्स भी थी. सो इन दो शॉप्स द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाय द टॉयज.
Now the child, he hurried, means he ran towards his parents because he was very obedient. That is, his feet obedient to their calling. His eyes were still lingering on the receding toys. मतलब कि लिंगरिंग मतलब अभी भी उसकी आंखें फोकस थी कहाँ पे, रिसीडिंग टॉयज. रिसीडिंग मतलब जो पीछे छूटी जा रही थी शॉप्स, उसमें जो टॉयज थे उस पर उसकी नज़र टिकी हुई थी. वो आगे बढ़ रहा था लेकिन नज़रें पीछे. एज ही केम टू वेयर हिज पेरेंट्स हैड स्टॉप फॉर हिम, he could not stop, that is he could not suppress his wish, that is desire of his heart, though he knew the old cold stare of refusal in their eyes. मतलब उसे पता था कि उसके पेरेंट्स की आंखों में क्या था, कैसे लुक्स थे, ओल्ड कोल्ड रिफ्यूजल लुक्स, मतलब कि गुस्से वाली आंखें और जो क्लियरली बता रही थी नहीं, हम नहीं खरीद के देंगे तुम्हें टॉयज. उसे पता था ही, फिर भी वो अपनी डिज़ायर को रोक नहीं सका. उसने रिक्वेस्ट कर ही दी. दैट इज ही प्लीडेड, आई वॉन्ट दैट टॉय. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, मतलब गुस्से में, इन हिज फेमिलियर क्रूअल वे. ऐसे ही उसके पापा गुस्से में देखते उसके सामने जब भी बच्चा कुछ मांग लेता. बट मदर, शी वॉन्टेड टू एन्जॉय दैट मोमेंट्स एंड द स्पिरिट ऑफ द डे, दैट फ्रीडम आउटसाइड. तो शी वेरी लविंगली टोल्ड द चाइल्ड जस्ट सी वॉट इज बिफोर यू. सो द मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वॉज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, शी वॉज टेंडर, and giving him her finger to hold, she said, look child, what is there before you. Now आगे जाके क्या देखा बच्चे ने, it was a flowering mustard field, मतलब सरसों का खेत. So and it has yellow flowers, harvesting time, येलो पूरा गोल्ड जैसे दिखाई देता है ये फील्ड when the mustard field is ready to be harvested. So it was a flowering mustard field, pale like melting gold, मतलब येलोइश दिखाई दे रहा था. as it swept across miles and miles of even land, मतलब दूर दूर तक देखो तो सिर्फ येलो फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे लाइक गोल्ड. अब ये बच्चा इससे अट्रैक्ट हो गया तो वो आगे बढ़ रहा था. Now it so happened a group of dragonflies were making some noise, और यहाँ वहाँ उड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे. तो बसलिंग मतलब हलचल कर रहे थे, stirring, and you can see the dragonfly pic over here. So a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. Gaudy purple wings means very colorful but dark colored wings. Intercepting, that is interfering, the flight of a lonely black bee or butterfly who was in search of sweetness from the flowers. मतलब कि जब भी कोई ब्लैक बी या बटरफ्लाई नेक्टर लेने जाए और किसी फ्लावर पे बैठने की कोशिश करते ये बटरफ्लाई या ब्लैक बी, तो वो ड्रैगन फ्लाई आके उनको परेशान करता. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज. तो बच्चा ऊपर की ओर स्काई की तरफ देखते देखते, क्योंकि ये इंसेक्ट्स उड़ रहे थे तो उसकी नज़र ऊपर की ओर थी बच्चे की, और उनको देखते देखते उनके पीछे दौड़ रहा था. टिल वन ऑफ देम वुड सिट स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. फिर जब कोई भी एक इंसेक्ट या बटरफ्लाई कहीं पे बैठता तो दिस चाइल्ड वुड ट्राई टू गो एंड कैच इट. लेकिन तब तक तो बटरफ्लाई उड़ भी जाता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, फ्लैपिंग, दैट इज फड़फड़ाना, फ्लैपिंग इज विंग्स अप इनटू द एयर, तो बटरफ्लाई वुड फ्लाई अवे. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, बच्चे को लगता कि अब बटरफ्लाई की पंख मेरे हाथ में आ गई, बट ये नहीं होता तब तक दैट बटरफ्लाई वुड फ्लाई अवे. Then once again the mother gave a cautionary call, that is a warning call. Come child, come,
come onto the footpath. He ran towards his parents happily and walked ahead of them. Or you can say sometime walked abreast, that is along with them for some time. क्यों क्यों थोड़ी देर के लिए साथ साथ चले वो? क्योंकि फिर से एक नई चीज़ आने वाली थी जिससे ये बच्चा अट्रैक्ट होने वाला था, तो फिर से वो पीछे छूट जाता. वंस अगेन द पेरेंट्स वुड कॉल हिम, कम चाइल्ड कम. तो अब ये बच्चा आगे बढ़ रहा था. सून टू बी लेफ्ट बिहाइंड. नाउ दिस टाइम अट्रैक्टेड बाय little insects and worms near or along the footpath that were teeming out, that is coming out in large number from their hiding places to enjoy the sunshine. तो कई ऐसे इंसेक्ट्स और वर्म्स होते हैं जो स्प्रिंग के पहले तक दर में चले जाते हैं अपने घर में, दैट इज बिलो द ग्राउंड. लेकिन जैसे ही सनशाइन टाइम, दैट इज समवेयर स्प्रिंग और फिर जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, गर्मियों के टाइम में यही सारे इंसेक्ट्स बाहर आ जाते हैं टू एन्जॉय द सनशाइन. तो बच्चा अट्रैक्ट हुआ विद दिस insects and worms. Come child come, his parents called him from the shade of a grove. Grove मतलब बहुत सारे trees हो जहाँ पे, where they had seated themselves on the edge of a well. जैसे नीचे है edge, जैसे हम कहते हैं कोई एक ऐसी broad चीज़ इस well की जहाँ पे बैठ सकते थे वो. He ran towards them and it so happened now a shower of young flowers fell upon the child. मतलब बहुत सारे फ्लावर्स के पेटल्स गिरने लगे उस पे. As he entered this grove, grove once again जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे और उसके पेरेंट्स कहाँ बैठे हुए थे? On the edge of that well. और अब बच्चा किससे अट्रैक्ट हुआ? By the petals of the flowers that was falling on him. And he forgot that his parents were sitting over there. He began to collect this falling, that is raining petals in his hands. But lo, that is, now he got attracted by something more, and that is the beautiful cooing of doves. You could see over here. And he ran towards his parents shouting, "The dove, the dove." The raining petals dropped from his forgotten hands. मतलब पेटल्स हाथ में से गिर गए, वो उसको भूल ही चुका था. क्यों? क्योंकि अब नई चीज़ मिल गई उसे, दैट इज़ द डव. वंस अगेन द पेरेंट्स कॉल्ड हिम, कम चाइल्ड कम. नाउ दिस चाइल्ड हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स, मतलब उछलते हुए, लीप करते हुए, लाइक यू ऑल्सो डू, यू जंप एंड यू मूव अहेड मेनी अ टाइम्स. सो दैट इज कॉल्ड टू रन इन वाइल्ड केपर्स. And this is how he was running around the banyan tree, you can see here. And gathering him up, that is gathering मतलब माँ बाप ने बच्चे को साथ में लिया. And they took the narrow winding footpath. Winding footpath मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी जा रही हो फुटपाथ, उस पे माँ बाप बच्चे को लेके आगे बढ़े. And this footpath was taking them to the fair थ्रू द मस्टर्ड फील्ड. और फिर यही पाथ उनको लेके जा रहा था टूवर्ड्स द फेयर. नाउ दिस लॉट्स ऑफ पीपल वर एंटरिंग द फेयर. दे केम वेरी क्लोज टू दैट विलेज. सो एज दे केम नियर द विलेज, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स. थ्रॉन्ग्स मीन्स you can say full of lot many people or a large densely packed crowd of people and animals, that is called throngs. तो बच्चे ने अब क्या देखा, जैसे ही वो उस गांव के नज़दीक आए जहाँ पे मेला लगा था, कि बहुत अलग अलग जगह से फुटपाथ वहाँ पे जो एक दूसरे को मीट कर रही थी, अलग अलग गांव से जो लोग आ रहे थे. बट ये लोग कितने थे? बहुत सारे. कन्वर्जिंग टू द whirlpool, that is gathering towards the center of the fair. Converging मतलब coming together. Whirlpool मतलब the midpoint of the fair.
तो ये सारे लोग मेले की तरफ इकट्ठा हुए. And the child saw it and felt at once repelled, means as if to force or get yourself forced back or drive away, move back. So he felt at once repelled and attracted, fascinated, very much interested by the confusion of the world he was entering. तो एक बार तो बच्चा पीछे हट गया. क्यों? अचानक से इतने सारे लोग, कुछ एक नई दुनिया में वो एंट्री ले रहा था जो पहले कभी नहीं उसने देखा था. सो ही फर्स्ट फेल्ट रिपेल्ड बट देन वेरी मच अट्रैक्टेड बाय दिस न्यू वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग इनटू. And the first person or the thing that he saw and got attracted was a sweet meat seller, मतलब मिठाई वाला. He was hawking. अब ये मिठाई वाला हॉक कर रहा था, मतलब जैसे रास्ते पे वो सब्जी वाले नहीं जाते बोलते हुए सब्जी ले लो, या कोई और कुछ चीज़ बेचते हैं रास्ते पे चिल्ला के. सेम वे अ स्वीट मीट सेलर वॉज हॉकिंग. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. नेचुरली आई कैन अंडरस्टैंड दैट योर माउथ मस्ट बी वाटरिंग, और कोई चांसेस ही नहीं है एट प्रेजेंट इन सब चीज़ों के खाने का, unless and until your mother prepares at home. So just you can dream of it for some time, for some more days. So this sweet meat seller was hawking at the corner of the entrance. मतलब कि जैसे ही एंटर हुए सबसे पहली चीज़ क्या देखी बच्चे ने? स्वीट मीट सेलर. एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर. और बहुत सारे लोग उस काउंटर की तरफ ही थे, मतलब कि स्वीट मीट सेलर के पास ही खड़े थे. एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर दैट इज ब्यूटिफुली डिजाइन ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. मतलब चांदी की वरख, जैसे कहते हैं ना, जैसे काजू कतरी, तो उसके ऊपर एक सिल्वर जो वरख हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. सो ये सारी मिठाइयाँ बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट की हुई थी, अच्छी तरह से एक के ऊपर एक सजाई हुई थी कि बहुत सारे लोग वहाँ पे खरीदने खड़े हो गए. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, जस्ट लाइक यू एट प्रेजेंट. बहुतों के मुंह में जैसे पानी पूरी नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए, वैसे द स्वीट लवर्स, उनको ये नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा, लाइक बर्फ़ी एंड रसगुल्ला, जलेबी एट्सेट्रा. वैसे इस बच्चे के मुंह में भी पानी आ गया. एंड ही वांटेड बर्फ़ी, क्योंकि ये उसकी फेवरेट स्वीट थी. उसने धीरे से कहा, दैट इज ही स्लोली मर्मर्ड. वाई स्लोली मर्मर्ड एंड नॉट लाइक यू, मम्मा आई वांट दिस. ऐसे नहीं, बच्चे ने बहुत धीरे से कहा कि वो खुद ही सुने, मम्मी पापा तक शायद आवाज़ ना आ गई हो. बट वॉट वॉज द रीज़न फॉर दिस स्लोली आस्किंग और रिक्वेस्टिंग? बिकॉज ही न्यू एवरीथिंग, कि माँ बाप ना ही कहेंगे, और क्या कहेंगे? कि तुम ग्रीडी हो और नहीं दिलाने वाले. सो ही स्लोली मर्मर्ड, आई वॉन्ट दैट बर्फी. बट ही न्यू, दैट इज ही हाफ न्यू, पता था पहले से, as he was requesting, that his request would not be heeded, मतलब it would not be paid attention, because his parents would say that he was greedy. So without waiting for any answer, he moved on to the next thing. And what was the next thing that he saw? Then there was a flower seller, and now he was hawking a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. Gulmohar, you must be knowing, the flower. The child seemed irresistibly attracted, that is drawn. Irresistibly matlab in a way that is too attractive and cannot stop yourself from having it. So the child seemed irresistibly attracted. He went towards the basket where the flowers lay
वन ऑन अनदर मतलब पाइल्ड अप, हीप्ड। अब हीप्ड का मतलब आजकल तो बहुत काम मिल ही रहा होगा पेरेंट्स के पास, तो ईजीएस्ट वर्क अगर बाय चांस तुम हेल्प कर रहे हो घर में, तो व्हाट इज दैट हेल्प दैट योर मदर इज आस्किंग फॉर, कि तार पे से कपड़े उठा के रूम में रख दो और फोल्ड कर दो। अब तुम क्या करोगे, सारे कपड़े एक ही राउंड में कलेक्ट कर लोगे और उसको डाल दोगे बेड पे। अब क्या बन गया, डगला, दैट इज हीप, पाइल्ड अप। फोल्ड करना तो देखा जाएगा बाद में, बट एट प्रेजेंट मीनिंग ऑफ हीप। सो नाउ दिस फ्लावर्स वर हीप्ड and he saw this beautiful, colorful and fragrant flowers. Once again half murmured, मतलब softly पूछा, I want that garland. But once again he well knew कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, नो। नो बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, माँ बाप की आंखें ही बता रही थी that they didn't want to buy anything for him. He well knew his parents would refuse to buy him those flowers because पेरेंट्स वुड से दैट दे वर चीप। चीप मतलब सस्ता नहीं, चीप मतलब यहाँ पे गंदा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एनी आंसर ही मूव्ड ऑन। अब आगे जाके देखा तो एक आदमी खड़ा था, दैट यू कैन सी ओवर योर, विथ कलरफुल बैलून्स। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, मतलब एक डंडा हाथ में लिए। अब यहाँ पे तुम्हें कलरफुल बलून वाला दिखाने के लिए पिक बताया गया है, अदरवाइज यू कैन से अ मैन स्टैंडिंग विथ अ बिग डंडा, और उस डंडे के ऊपर बहुत सारे कलरफुल बलून्स दैट यू सी मैनी टाइम्स एट दी हाईवे क्रॉसिंग। सिग्नल पे लोग अलग अलग टाइप्स के कलरफुल चमकते हुए बलून्स बेचने जो आते हैं। सो दिस मैन ऑल्सो वॉज स्टैंडिंग विथ अ पोल ऑफ येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. The child was simply carried away, that is attracted by this rainbow glory of their silken colors, मतलब रेनबो के कलर्स वाले ये कलर्स थे बलून्स के। and he was filled with an overwhelming means great amount, मतलब कुछ ज़्यादा ही इच्छा उसकी जाग रही थी, that is with his overwhelming desire to have all the balloons, that is to possess them all. But yes, he well knew that his parents would never buy for him these balloons because they would say that he was too old to play with such toys. अब अगर मैं क्लास में होती तो it is my every year a stop over here and including this sentence as in grammar and asking the students, but at present so sorry, but still couldn't stop myself, so I'll tell you over here that other part of the sentence. He was too old to play with such toys. So all those 8th standard students who are there with me, I know you will easily able to answer this कि ये simple है, complex है, ये compound है. Yes, you must be knowing. Many other students also newly joined. You also know, I know you will be very much well versed with some of these sentences. तो ये हुआ एक सिंपल सेंटेंस। इसी को अगर हम कॉम्प्लेक्स में डालें तो TOO की जगह पे सो, TO की जगह पे दैट, और क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड नहीं है तो ऐड करेंगे। तो अब बनाते हैं इसको कॉम्प्लेक्स। He was so old that he cannot play with such toys. और ये जब हमने ट्रांसफॉर्म किया तो हमने क्या नहीं बदला यहाँ पे, yes, we didn't change any tense. Sorry, we changed the tense. So let's frame it once again. He was too old to play with such toys. Now let's make. आगे क्या किया था, कैन नॉट लगाया था। हमें क्या करना है, कुड नॉट लगाना है, बिकॉज इट इज ही वॉज, इट इज पास्ट टेंस। सो ही वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट प्ले विथ सच टॉयज। वो जब
हम फिर से मिलते हैं आमने सामने। यही सारी चीज़ें ग्रामर की तुम्हारे लिए ईजी होती जाएगी। सो नीड नॉट वरी। नाउ दिस पेरेंट्स एंड द चाइल्ड वॉक अहेड टूवर्ड्स समथिंग न्यू to be attracted for the child. So this we will continue the next part in the second video. Till then, just imagine what the story will be ahead, what will happen to the child, and just imagine, keep on imagining. Till then, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो भी है, मीनिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं, कीप ऑन लर्निंग इट, एंड आफ्टर अ डे you will move ahead with me in the fair and see what happens to the boy. Thank you so much.